Hello, friends. So, welcome back to your own channel that is We Are in Techno World. So, in this lecture, I'm going to tell you about HTTP protocol and how actually the configuration would be done for the HTTP server. All right. So, as you could see, the structure of it. So, we would take some of the PCs, like three PCs. I'll take into this like the HTTP protocol configuration, one server and one switch. So this is our client server model, and the main objective for this HTTP protocol configuration is to understand and to configure the HTTP protocol within a computer network. The tool which would be used is Cisco Packet Tracer. The key concept is like this HTTP protocol is used to transfer the web pages between the web server. This is the web server, and these three are the clients. Okay, and benefits क्या होंगे? Like the benefits to use this HTTP protocol configuration is to learn like how actually the web servers work and how the clients could access all the web pages which are configured under this HTTP server. All right. So these things you would learn here. And these are some of the step-by-step guide, but only in a very short steps, right? These are not the detailed steps. These are the short steps which are written over here so that the students could understand, right? Okay, now the uses of HTTP protocol. As you know that HTTP refers Hypertext Transfer Protocol, and it is used for the communication over the internet with the help of web applications. So it allows devices to access and to display the web pages. The main uses are web server communication, means it connects more than one PCs to with the web server to access the web pages. Then the second thing is to testing the network connectivity, because we could apply the ping command here, even though the traceroute command could be used, means so many networking commands we could use. Then the third main use is to host the web pages. All right. Then the fourth main uses of this HTTP protocol is client server model understanding, because here, as you could see in the structure, I have told you like there are three clients and one main server. So for the client server model understanding, you could use this HTTP protocol. Then the fifth main use is simulation of real internet uses, like how actually we could use the internet facility from client to server, right? As you could see the example, like this is one client, which you could say any of the PC, it could be the laptop, it could be the CCTV camera, right? And with the help of that, what you are doing, you are entering the server IP address, then the web server is giving the response, and after that the web page would be loaded as soon as we would give the command for the IP address, right? So this is how we would use this HTTP protocol, and with the help of simulation I'll tell you how actually it would be done. So for that purpose, what you do, you just open Cisco Packet Tracer. Okay, this is your Cisco Packet Tracer window. चलिए अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं. फॉर दैट पर्पज बॉटम राइट में आप आइएगा. बॉटम राइट नहीं, आपका बॉटम लेफ्ट है. बॉटम लेफ्ट में आप आइए, click on end devices, then do take three generic PCs, 1, 2 and 3, right? Three generic PCs I have taken, like this, drag and drop in this Cisco Packet Tracer window. ओके आप यहाँ पर जूम भी कर सकते हैं इसको, सो दैट क्लैरिटी यहाँ पर रहे कि किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे. चलिए, ये तो हमारे PCs हैं. नाउ गो टू द एंड डिवाइसेस एंड डू टेक और डू चूज सर्वर, दैट इज ऑन द थर्ड नंबर, राइट? आप एक जेनरिक सर्वर यहाँ पर चूज कर लीजिए एंड ड्रैग इट ऑन द टॉप ऑफ दिस सिस्को पैकेट ट्रेसर विंडो, राइट? चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस होगा वो होगा नेटवर्किंग डिवाइस, राइट? नेटवर्किंग डिवाइस हम क्यों लेंगे? बिकॉज हमें अपने सर्वर को और क्लाइंट को कनेक्ट करना है आपस में. सो दैट इज वाई नाउ आई एम इन नीड ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस. तो चलिए, अब मैं इनको कनेक्ट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ स्विच. एज यू कुड सी, ये है आपका स्विच. अच्छा, हम यहाँ पे स्विच लेना है 2960. जो मॉडल नंबर है स्विच का वो है 2960. डन. तो हमने सेंट्रल लोकेशन पे बना दिया है.
चलिए आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द कनेक्शंस, टू मेक द कनेक्शंस बिटवीन क्लाइंट्स टू सर्वर। चलिए हमारे पास कनेक्शन है ऑरेंज कलर आइकन में, क्लिक ऑन इट। देन डू चूज कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर, राइट। एवरीवन डू चेक, देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ये वायर्स के नाम नजर आते हैं, राइट। तो अभी हमें चाहिए कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, डन। तो क्लिक कीजिए इस पे एंड आफ्टर दैट पीसी 0 को आप कनेक्ट कीजिए विद द स्विच। देन अगेन चूज कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। Do choose PC number 1 with switch. Do take copper straight through cable. Then connect PC number 2 with the switch. After that again choose copper straight through cable and do connect this switch to the server. चलिए ये तो बात हुई कनेक्शन की। Then now what would be the next step? Next step would be assign the IP address. ठीक है, आपका एक मेन और एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो होगा दैट वुड बी असाइन द आईपी एड्रेसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीसी 0 से। आपको अगर पीसीज का नाम चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट, बट आई एम नॉट डूइंग सो, राइट। बट आपको अगर करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इवन दो आईपी एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप नीचे एक आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। लेट अस सपोज आप इसको दे रहे हैं 180.90.110.11, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीसी का जो नाम है वो है पीसी 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने असाइन नहीं किया है अभी आईपी एड्रेस, तो क्लिक ऑन इट। देन गो टू द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आईपी एड्रेस यहाँ पर हम रखने वाले हैं 180.90.110.11, ठीक है। प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली द सबनेट मास्क वुड बी डिटेक्टेड, ठीक है। ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आएगा। देन क्लोज इट। डू क्लिक ऑन पीसी नंबर 1, go to the desktop, click on IP configuration, and again choose the IP address. So let us suppose it is 180.90.110.12. Press enter. Now close it. Then the PC number 2, go to the desktop, click on IP configuration, then do choose the IP address, that is 180.90.110.13, ठीक है। ये आपका होगा थर्ड पीसी का आईपी एड्रेस। नाउ द टर्न इज ऑफ द आईपी एड्रेसिंग ऑफ सर्वर। चलिए क्लिक ऑन इट, डेस्कटॉप, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए सर्वर का भी आप आईपी एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपको वही रखना है, बट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। द थिंग इज यू मस्ट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। चलिए लेट अस सपोज अभी आईपी एड्रेस है 180.90.110.14, राइट। ये हमारा आईपी एड्रेस है, नोट कर लीजिएगा इसको बिकॉज इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा सर्वर को कॉन्फ़िगर करना। तो बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एचटीटीपी सर्वर ना, तो एचटीटीपी जो सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, ठीक है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे पूरा एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है इस सर्वर पे, ठीक है। ये हमारा जो सर्वर है इस पे हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि किस तरह से हम एचटीटीपी सर्विसेज को यूज करेंगे। तो चलिए गो टू द सर्विसेज, ठीक है। गो टू द सर्विसेज एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन एचटीटीपी। अब देखिए एचटीटीपी में हमारे पास कितनी फाइल्स है जो एडिटेबल हैं, कॉपीराइट्स डॉट एच टी एम एल, हेलो वर्ड डॉट एच टी एम एल, इमेज डॉट एच टी एम एल एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन हम इसमें करते हैं, लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एडिट पे क्लिक कीजिए। अब लेट अस सपोज मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लिखना है हेलो, this is an index file. This is an index page and this is created and edited by me. Done? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कंटेंट एडिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव। अब आपसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड इट वुड आस्क कि देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम, यू वांट्स टू ओवरराइट, तो क्लिक ऑन यस। देन आपका ये पेज जो है ये सेव हो चुका है।
Now again go to the services, click on HTTP, then do check the second file, that is image file. Click on edit. देखिए इमेज फाइल में लेट अस सपोज हमें चाहिए सिस्को का लोगो, ठीक है, दिस इज एन इमेज ऑफ सिस्को लोगो, तो ये भी ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टिल कुछ लिखवाना चाह रहे हो कि लाइक दिस इज एन इमेज पेज एडिटेड बाय मी, राइट। इस तरह से क्या किया है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लाइक ये पेज जो है वो एडिट कर दिया गया है, डन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव एंड देन ओवरराइट, ठीक है। नाउ चेक अगेन द फाइल दैट एग्जिस्ट अंडर HTTP। तो जितने भी वेब पेजेस हैं, राइट, क्लाइंट जिन भी वेब पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, हम सबको यहाँ पर एडिटेबल बना रहे हैं, राइट। हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में भी लाइक व्हाट यू कुड डू, you could make the changes. Hello world, this is the hello world web page, done, and then save it, overwrite it, then again click on HTTP and do check the another file, that is copyrights.html. ओके तो हम क्या कर सकते हैं, हम copyrights.html को भी एडिट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आप क्या कीजिए, देखिए हमारा मेन काम यहाँ पर है कि लाइक HTTP सर्वर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। तो HTTP जो है यहाँ पर वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो किस तरीके से हम इसे एडिटेबल बनाते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर क्लाइंट्स के थ्रू हमारा जो सर्वर है वो एक्सेस हो पाए, राइट, वही सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो here you could write this is a copyright page, done, and then save it. Yes, okay, so I have made the changes in all of the web pages. Okay, now what you need to do, just close it, and after that we would try from PC number 0 whether the server, that is like HTTP server, whether all the web pages are accessible. But first of all, what we would do, we would check it with the help of networking commands. Okay, so for checking whether we are getting the response from the server, first of all, I'll click on command prompt. कमांड प्रॉम्प्ट से हम पिंग करके देखेंगे। चलिए हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या था, दैट वाज 180.90.110.14। तो यस द रिस्पॉन्सेज आर कमिंग फ्रॉम द सर्वर, ऑल राइट। तो चलिए दैट मीन्स इट इज रेडी, हमारा जो सर्वर है HTTP सर्वर दैट इज फुली रेडी टू रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स। चलिए अगेन यू नीड टू राइट the IP address 180.90.110.14। तो देखिए अभी यहाँ पर HTTP लिखा हुआ नहीं आ रहा है, राइट, बट एज सुन एज यू वुड क्लिक ऑन गो, देखिए ऑटोमेटिकली द HTTP इज कमिंग, राइट। तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, जो कि इस सर्वर पे क्या हो चुका है, सर्वर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर दी गई है। नाउ ऑल द पेजेस आर एक्सेसिबल टू ऑल द क्लाइंट्स। हेलो दिस इज एन इंडेक्स पेज एंड दिस इज क्रिएटेड एंड एडिटेड बाय मी, डन। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट काम है कि आपको लेट अस सपोज सर्वर का नेक्स्ट पेज क्या करना है, चेक करना है, राइट। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट यू नीड टू डू, आपको लगाना होगा फॉरवर्ड स्लैश। ध्यान रखिएगा बहुत ही बारीक सी चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक लगाना भूल जाते हैं, एंड आफ्टर दैट लाइक दे गॉट ट्रैप्ड अंडर दिस सेक्शन कि कैसे ये काम करेगा। सो फॉर दैट पर्पज आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड स्लैश जरूर लगेगा। चलिए अब आप अपनी फाइल्स का नाम लिखिए, लेट अस सपोज इट इज image.html एंड क्लिक ऑन गो। तो देखिए दिस इज द फाइल ऑफ इमेज, राइट। सो जस्ट लाइक दैट हम सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कॉपी राइट, ये कॉपी राइट डॉट एच टी एम एल नहीं है, इफ यू वुड चेक तो इट इज कॉपी राइट्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि आपकी कमांड्स नहीं चलेंगी, अगर आपने सही से कन्फिगर किया है तो ऑब्वियसली इट वुड वर्क। बस आपको नाम का ध्यान रखना है कि लाइक फाइल्स का या वेब पेजेस का यहाँ पर नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो वेब पेजेस का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वेब पेज जो आपने यहाँ पर एडिट किया था,
index.html हो चुका है, देन आपके पास लाइक image.html भी चेंज हो चुका है, देन यू नीड टू चेक hello world.html, hello world.html। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो हेलो वर्ड, दिस इज द हेलो वर्ड वेब पेज। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट व्हाट यू कुड डू, यू कुड चेक ऑल द वेब पेजेस एंड इट इज एक्सेसिबल बाय पीसी नंबर 0। ठीक है, चलिए अब अगर आपको लेटर सपोज चेक करना है कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पीसीज आर कनेक्टेड, लेटर सपोज, देखिए छोटी सी एक विंडो है, इसमें हम 1000 पीसीज तो लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बट येस हम ट्रायल के लिए 50, 60, 100 पीसी ले सकते हैं। चलिए स्टिल हम पीसी नंबर 2 से यहाँ पर चेक करके देखते हैं whether all the HTTP pages or web pages are accessible or not, right? तो चलिए पहले हम पिंग करके देख लेते हैं with the help of command prompt, ping 180.90. You could say 100.14। तो yes, commands तो properly काम कर रही हैं। And if we would check the web browser, तो yes हम देख लेते हैं 180.90.110.14। तो यस इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, पीसी 2 के साथ भी बैक लाइक फॉरवर्ड स्लैश लगा के किसी भी एक फाइल को चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंडेक्स तो नहीं, मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ image.html। ठीक है, क्लिक ऑन गो। तो देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप सभी क्लाइंट्स के थ्रू आपका जो सर्वर है, एचटीटीपी सर्वर है, वो एक्सेसिबल है। ठीक है, एचटीटीपी के फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, जिसको हमने एक सर्वर पे सभी तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया है, राइट। अब आप इसमें टेस्टिंग करके देखें whether it is accessible or not. So I hope this is like clear to everyone. But still, if you are having any doubt, so you could write in the below comment box, and I'll try to resolve your problem. So till then, thank you, and do practice in Cisco Packet Tracer window. So thank you everyone. Thank you so much.